सो गुड इवनिंग। आज का डिस्कशन DFCCIL द नोटिफिकेशन 2021 there is a vacancies for BTech graduates, diploma as well as ITA students. आज का complete analysis, see the full form का DFCCIL Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. It is come under a Government of India enterprises. समझ गया? What are the things we are going to discuss in this session? The brief topics is here. DFCCIL का vacancies का details क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, एज क्राइटेरिया का, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, पूरा ये वीडियो में मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, यू लाइक, शेयर एंड दिस चैनल, साई मेधा चैनल, एंड यू कैन गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। आपका क्या क्या मिलेगा, पोस्ट कहाँ है, गवर्नमेंट में क्या पोस्ट रिलीज करता है, ये डिटेल्स आएगा आपका। सो इसके लिए आपका बेनिफिट है, आपको शेयर करो और ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम द फाउंडर ऑफ साई मेधा इंस्टीट्यूट. इट इज इन हैदराबाद, विजयवाड़ा एज वेल एज इन तिरुपति. Tirupati Balaji आपका मालूम है, I hope. It's a Lord Venkatesh prize there, na? From their place also we have our branch. Doctorate in electrical engineering. Myself, I have 24 years of experience in the GATE, ESE, PSU for various competitive examinations. My students are selected for plenty of students are selected for the various competitive exams, especially for government jobs. And of course, our students got All India first rank. I worked for the AP Transco for a couple of years. I resigned for my job and I mentored more than 1 lakh students for the various courses, not only for GATE, ESE, for all other courses also we discussed. And the Sai Medha established in 1994. 1994, this is the establishment year. Our faculty are from various NITs, IITs, highly experienced faculty. And you see, we got All India first rank 3 times in the GATE examination. Out of that, one time our student got 1000 by 1000 score. I think it is 2 times. And 5,800 students are selected for various government jobs. We have the best material, synopsis and solving of problems, personalized doubts clearance, rank, material and everything. You can see the details from our website also, saimedha.com. And those who got good ranks in the top All India first ranks, these are the students' details. And those who selected for the various examinations, BSNL, ZTO, Transco, Zenco, Vidyut बैच का, ये वाला है सेलेक्शंस का स्टूडेंट्स है उसमें. ठीक है, अभी चलेगा डिस्कशन का. क्या है उसमें डिस्कशन? और फर्स्ट ए रिक्रूटमेंट नोटिस और एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 है. सो DFCCIL invites a application through a online mode of the post. एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन है और दूसरा एग्जाम भी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. You can see here there are 3 types of categories of jobs. One is junior manager or executives and also junior executives. The junior manager का क्वालिफिकेशन क्या है? उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल
बोथ द जॉब्स हैं, टेक्निकल है, जूनियर मैनेजर का टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, पूरा डिटेल्स अनदर नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली ऑन द टेक्निकल. That the qualification may be BTech as well as BE, and for non-technical का administrative MBA कोर्स एलिजिबल है. और एग्जीक्यूटिव का क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा. उसके लिए डिप्लोमा इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज these executives not only the diploma, higher education like BTech is also eligible with a 60% of minimum aggregate. Keep it in mind, not only for diploma, ये job BTech वाला भी मिलेगा, BTech वाला भी मिलेगा, higher qualification. और junior executive इसके ITI इज द क्वालिफिकेशन है, ITI. सो बीटेक वाला का, डिप्लोमा वाला का, ITI वाला का, सेमी गवर्नमेंट दैट इज PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. दिस इज द नोटिफिकेशन हैज रिलीज्ड इन द 2021. अभी ले ले लास्ट डेट का एप्लीकेशन. द लास्ट डेट का एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है, लास्ट डेट का 23/5/2021 का. और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट नहीं दिया, बट द टेंटेटिव डेट में भी जून 2021. बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 इट मे बी पोस्टपोन टू द अगस्त, समथिंग लाइक दैट एज पर द एक्सपेक्टेशन इज कंसर्न. सो ज्यादा टाइम है, 3 मंथ है ना, थोड़ा प्रिपेयर करो. जॉब गवर्नमेंट जॉब आएगा. सैलरी देखो ना, अभी स्लाइड में आएगा कितना सैलरी है, एक ही पोस्ट में कितना सैलरी आएगा. चल जस्ट यू कैन सी दैट. दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस है. और वन बाय वन डिस्कस करेगा. इधर जूनियर मैनेजर सिविल है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल है, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD. ये पोस्ट का नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी है. ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन का बैचलर डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 31. और मैकेनिकल की थोड़ा कम है जॉब्स, ओनली 3. एंड द बैचलर ऑफ डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मेनी ऑफ देम एलिजिबल, बट द वैकेंसीज आर 3. डोंट वरी, यू कैन अप्लाई. व्हाट हैपेंस, नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट, समटाइम्स यू मे गेट इट. और कमिंग टू दी जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस का, ये वाला MBA अभी बोला ना, MBA, PGDBA, PGDBM सच ए क्वालिफिकेशंस एलिजिबल हैं. उसमें 60% मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, 60% मिनिमम एग्रीगेट चाहिए. और देखो सिलेबस, सैलरी अब बोला ना, एग्जीक्यूटिव का कितना सैलरी है, जस्ट एग्जीक्यूटिव का सैलरी 30,000 to 1,60,000. फॉर द जूनियर मैनेजर का मोर देन दी सैलरी है. जूनियर मैनेजर का आप देखो ना, उसमें क्या है, कितना सैलरी, जस्ट सी हियर. अभी 50,000 का 1,60,000 द रेंज ऑफ द सैलरी. कैसा है, कितना सैलरी आएगा, थोड़ा प्रिपेयर करो ना, आपका जॉब आएगा, मजा आएगा. यहां से नेक्स्ट यू सी व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा वाला का. ये जॉब्स डिप्लोमा वाला का मेनली द इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव सिविल का 73 है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 42 है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स का 87, थोड़ा ज्यादा नंबर है, 87. इसके एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक, ये वाला who completed these courses. Basically this is for electronics and electrical students. Maybe some courses will be there. This is the eligibility. And for this diploma 3 years of electrical engineering, electronics, power system, electrical related वाला का ये jobs है. और ये प्योर सिविल वाला का, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शनल, स्पेशलाइजेशंस, कंस्ट्रक्शन, दीज आर ऑल स्पेशलाइजेशंस. अभी है ना ये वाला एग्जीक्यूटिव का. और दूसरा some more is here, executive operation and BD. This is for non technical.
ये ग्रेजुएशन है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन द नॉन टेक्निकल का जॉब्स है, नॉर्मल डिग्री ये एलिजिबिलिटी उसका। एंड द एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल ये भी ओनली 3 वैकेंसीज है, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल डिप्लोमा, मेन मैकेनिकल डिप्लोमा मिलेगा। और नेक्स्ट कमिंग टू द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये देखो 25,000 से 68,000 का ITI वाला का कितना सैलरी, ये डिग्री वाला भी ये जॉब इंपॉर्टेंट है ना, ये डिग्री वाला का कितना सैलरी, इतना सैलरी है 25,000 से 68,000। और इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ज्यादा नंबर है वैकेंसीज 135, और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का 147 है, ये भी इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ITI इज कंपल्सरी उसमें, without ITI you cannot appear this exam. So matriculation with minimum 10th class with minimum 60% of aggregator plus minimum of 2 years duration course completed apprenticeship or ITI approved by the some universities like NCVT or SCVT, something like that. It should not be a dummy certificate, it should be recognized by the government, SCVT as well as NCVT का। ITI का क्वालिफिकेशन है, थोड़ा देखो ITI का क्वालिफिकेशन, उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस भी है, ये वाला ITI और एनी डिग्री ग्रेजुएशन इज आल्सो एलिजिबल फॉर दिस, ग्रेजुएशन इज आल्सो एलिजिबल। और जूनियर मैकेनिकल ये भी ITI वाला है, मैकेनिकल का पोस्ट 14 है, ITI सिग्नल्स का ज्यादा है ना पोस्ट, कितना है देखो इधर 147 और इलेक्ट्रिकल का 135, ज्यादा नंबर है उसमें। ओके, इज इट क्लियर फॉर यू द इंपॉर्टेंस इन इंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस रिगार्डिंग दिस? सी कैंडिडेट अपियरिंग अवेटिंग रिजल्ट्स, यू आर इन फाइनल ईयर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, दोस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। आप फाइनल ईयर पढ़ता है ना, ये वाला ना एलिजिबल है, आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट कोर्स कंप्लीट के बाद में ये वैकेंसी का एलिजिबिलिटी आएगा, दिस इज नॉट एलिजिबल है। उसमें क्या नॉट एलिजिबल है? अपियरिंग अवेटिंग फॉर रिजल्ट्स, आपका हैंड में अप टू द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका हैंड सर्टिफिकेट चाहिए। और वेर डिप्लोमा इज एसेंशियल, क्वेश्चन अभी बोला आपका the diploma is essential qualification, post mentioned in 2.2, that's what I told you, the diploma, the candidate holding degree with minimum 60% marks, BTech BE वाला भी एलिजिबल है, स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में एलिजिबल आएगा। और द पोस्ट ऑफ द सिग्नल्स एंड टेलीकॉम BCA MCA, द पोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है ना सेकेंड डिप्लोमा वाला का, ये वाला का BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला भी एलिजिबल है उसमें। फॉर द ITI एलिजिबिलिटी है, अभी बोला ऑल द डिटेल्स। एंड सी डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर एज ए हायर क्वालिफिकेशन फॉर ITI का। सो फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव का ITI इज कंपल्सरी, हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड, नेक्स्ट MBA PCDA से एवरीथिंग डिटेल्स हैं उसमें। नाउ देखो एज लिमिट क्या है जूनियर इंजीनियर का, जूनियर मैनेजर का 18 to 27, दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी है, ये टेबल ओपन कैटेगरी का, एक्सेप्शन आएगा SC ST BC OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये वाला को एग्जेम्पशन आएगा। एग्जीक्यूटिव का 18 to 30 years, जूनियर एग्जीक्यूटिव का 18 to 30 years, एज रिलैक्सेशन बाय 5 years of SC ST and by 3 years of OBC non creamy layer है, the annual income should be less than 8 lakhs, they come under the non creamy layer है, both family income should be less than a income certificate और cash certificate central government accepted certificate required है उसमें। ये वाला को 3 years additional time eligibility है, 10 years of physically disabled candidate, totally 15 years of SC ST and
13 years for OBC non-creamy layers, including this. Upper age limit of the relaxation by 0.8 years of the irregular employees of DFCCIL. ये DFCCIL वाला का एलिजिबिलिटी. और देखो कैसा क्या एग्जाम है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, इधर पूरा टेबल में मिलेगा ना. जूनियर मैनेजर का एवरीथिंग का अभी देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एवरी वन हैज टू अपीयर. ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, एवरी पूरा एवरी वन इज टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. पहले देखो इधर ये एडिशनल टेस्ट, एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का थोड़ा ये एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए. ये वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. थोड़ा इधर नॉन टेक्निकल का है ना, ये वाला को CBAT टेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर आएगा. अभी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर आएगा इधर. CBAT टेस्ट एडिशनल टेस्ट है. ये वाला को CBT है, ये वाला को CBAT एंड CBAT बोथ भी चाहिए उसका. नो प्रॉब्लम. नॉन टेक्निकल का document verification, everybody required document verification. What is the need of this column? Don't worry, everybody required all the things. इंटरव्यू फर्स्ट 3 एग्जीक्यूटिव लेवल है ना, ये वाला को इंटरव्यू है. जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का इंटरव्यू है. और पहले आदमी का इंटरव्यू नहीं है. डायरेक्ट रिटन टेस्ट में कितना मार्क आपका मेरिट लिस्ट में है ना, आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा. और मेडिकल टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. मेडिकल टेस्ट भी ये फुलफिल करना है. मेडिकल टेस्ट भी हाल है और CBT टेस्ट हाल है. और थोड़ा इंटरव्यू फर्स्ट 3 वाला हायर पोस्ट है ना, मैनेजर इज हायर पोस्ट है, उसका इंटरव्यू भी है एडिशनली. नेक्स्ट देखो इधर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20, कितना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड है. एवरी जॉब वाला का इधर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2 hours एग्जाम है. 2 hours ड्यूरेशन एग्जाम है. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द 120 क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, ये रेड मार्क में देखो, इधर हम लोग रेड मार्क में फिल करता है. नेगेटिव मार्किंग है 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग. दिस इज द योर जॉब डिसाइडिंग द फैक्टर. You must be very careful while writing the examination. Negative marking है. Qualify marks written test CBT minimum of 40%, but finally 40% means don't think that I am going to get the job. Minimum is 40% है. Or who are there in the merit list, they will take the merit basis candidates. But SC ST और दूसरा का 30%, ST का 25% है. SC अनरिजर्व्ड, SC OBC NCL का 30% मिनिमम क्वालिफाइंग, ST का 25%. पूरा वाला का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. नेक्स्ट this what is this slide go through the students who are the for operation and BD, not for the others. operation and BD वाला का ये separate CBAT टेस्ट है. CBAT टेस्ट है. But remaining students does not require CBAT students. So civil engineering वाला, mechanical engineering, ITA वाला, diploma वाला, except non technical वाला का CBAT टेस्ट नहीं है. आपका CBT टेस्ट only, 120 मार्क्स का टेस्ट only. Don't confuse for that. This is what we have. कितना एप्लीकेशन फीस अभी देखो, कितना जूनियर मैनेजर का 1000 रुपीज है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 900, सॉरी एग्जीक्यूटिव का 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव का 700. बट नो एग्जामिनेशन फीस फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विस कैंडिडेट्स. ये भी नोट करो. रिमेनिंग OBC OC ओपन कैटेगरी ऑल द आदमी ये पैसा पे करना चाहिए. दैट इज एग्जामिनेशन फीस. Though computer based test, the 10 centers as per your convenience. CBT may be Patna, Ahmedabad, Guwahati, Varanasi, Bhubaneswar,
चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, बैपोल, विशाखापट्टनम, रांची, ये वाला एग्जामिनेशन सेंटर्स है. So go through the much details. If any doubts you are having, send a message to the our channel Sai Medha. What is that? Sai Medha is there na YouTube channel का. ये में थोड़ा आपका डाउट डालो, आंसर आएगा आपका. This is the where you have to go for the application process and all the details are available. You note down and take the this point and go through this one. Application process पूरा ये website में मिलेगा आपका. और next, see here how the question paper syllabus for various posts as well as how the examination pattern. Just if you see here, the junior manager, totally 120 marks hai na. Out of 120 marks, 24 questions are come under the general knowledge and general aptitude reasoning. ये भी part 1 का. Part 2 का 96 questions and civil वाला का syllabus engineering, soil mechanics, structural analysis, constructional material, management, concrete structure, steel structure, soil mechanics, foundation, municipal transportation in highways, all the traffic engineering and surveying. These are all come under the syllabus for the civil engineer manager का. Junior manager civil का. Junior manager operation ये भी 24 है, 96 क्वेश्चन है. मैनेजमेंट सिलेबस है, मैनेजमेंट फंक्शंस, बिहेवियरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन और थोड़ा देखना ये मैनेजमेंट का जॉब्स हैं. ये सिलेबस दिया. और अभी नेक्स्ट ये भी मैकेनिकल है. ओनली 3 वैकेंसीज आर देयर ना. 24 फॉर द टेक्निकल, दैट इज नॉन टेक्निकल लाइक जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. 96 क्वेश्चंस का दिस वन. ये सिलेबस का मैकेनिकल थोड़ा रीड करो, होल्ड अप वीडियो, होल्ड एंड टेक डाउन इफ यू रिक्वायर दिस. एंड एग्जीक्यूटिव सिविल ये वाला हो गया, मैनेजर वाला हो गया. एग्जीक्यूटिव सिविल डिप्लोमा वाला का है ना, 24 क्वेश्चंस है पार्ट 1. ये भी सिलेबस सेम है. 96 क्वेश्चंस फ्रॉम आपका टेक्निकल ब्रांच सब्जेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग में आएगा. 96 क्वेश्चंस. सर्वे सेम सिलेबस ऑलमोस्ट. सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. अभी देखा ना ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा सिलेबस में. ऑलमोस्ट ऑल सेम सिलेबस. Just hold the video. If you require, you just copy it, screenshot it. You will get it. Next, executive electrical का 24 and technical का 96. Syllabus circuit analysis, networks है ना, machines, all machines है. Electronic subjects, electronics means devices, digital, ये subjects भी आएगा. Measurements, control systems, material systems, rest of etc. Power system also you have to read. A specified etc means what you studied. Power system will be there, that syllabus. Brief power electronics also you require. These are all the syllabus you have to study. Executive signal telecom का 24 questions aptitude reasoning में और 96 questions टेक्निकल में. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है. नेटवर्क, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. ईडीसी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्क्यूट्स का, डिजिटल सर्क्यूट्स का, कंट्रोल सिस्टम्स का, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. ये भी सिलेबस है. और दिस इज नॉन टेक्निकल है. ये वाला नॉन टेक्निकल. ये भी मैकेनिकल का सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस का मैनेजर का सिलेबस है. ये भी 24 और 96 सेम प्रोसीजर. ये आईटीआई वाला का थोड़ा क्वेश्चन पेपर डिफर है as compared to the diploma and BTech, executive and junior manager. और पहले ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सिलेबस डिफर है. सिलेबस क्वेश्चन पेपर भी डिफर है. देखो इधर 60 क्वेश्चंस में जूनियर एग्जीक्यूटिव का एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट है. ये वाला और रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस है इंजीनियरिंग में आएगा. डिसिप्लिन मीन्स इलेक्ट्रिकल ट्रेड है ना, आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड क्वेश्चंस में आएगा. ये भी सर्क्यूट एनालिसिस, फील्ड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, एनालॉग एंड डिजिटल, इलेक्ट्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स है.
इलेक्ट्रिकल वाला का। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का ये भी है 60 क्वेश्चंस, ये एप्टीट्यूड रीजनिंग में मिलेगा। और सिलेबस ये वाला का थोड़ा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का है, इलेक्ट्रिकल वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, analog and digital circuits, analog and digital communication, computer organization and architecture, electromagnetics and advanced communication topics। थोड़ा कम्युनिकेशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, पढ़ना है। कम्युनिकेशन देखो इधर, कम्युनिकेशन, एडवांस्ड कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें। अनलॉग डिजिटल सर्क्यूट्स भी है, थोड़ा ये सिलेबस एंटायरली डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल वाला को ये प्रीफर करना, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इलेक्ट्रिकल वाला ये एग्जाम एलिजिबल है, बट सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है ना, आप डिसीजन ऐसे लेना। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का ये भी नॉन टेक्निकल ऑपरेशन का नॉन टेक्निकल है। इज इट? द क्वेश्चन पेपर इज सिमिलर। मैकेनिकल का है 60 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड एंड 60 क्वेश्चंस देयर कोर सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, हीट टेम्परेचर, मशीन्स, mechanics and tools and equipments etc. ये वाला है। Okay, this is clear for you? If any doubt, you just send a query to our comment box। YouTube में comment box है ना, comment box, my coordinator will give a reply according to your requirements। Okay, all the best। Try to subscribe and share the video for this.